Hello students, I am Nisha Mishra and today we are going to start with the second part of The Sound of Music, and it is about the Sehnai of Bismillah Khan. Okay, Bismillah Khan was a pronounced Ustad Bismillah Khan was a pronounced Sehnai maestro. Okay, he was a master in Sehnai. So let me start how the Sehnai came. Emperor Aurangzeb banned the playing of musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill, unpleasant sound. Pungi became the generic name of revered noisemaker. Few had thought it would be one day be revived. A Baba of a family professional musician who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of pungi. He chose a pipe with a natural hollow stem that has longer and broader than pungi and made 7 holes on the body of the pungi of the pipe. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. The instrument of different form, the pungi had to given a new name, and as the story goes, since it was the first played on the Shah's chamber and was played by a nai, that is the barber, the instrument was renamed as Sehnai. Okay, so what happened कि पुंगी जो इंस्ट्रूमेंट था उसको औरंगजेब ने मना कर दिया कि उसको नहीं बजाना है. पुंगी इस तरह से दिखता था, देखिए आप लोग, ऐसा टाइप में दिखता था. तो उन्होंने मना कर दिया कि बहुत ही अनप्लीजेंट, बहुत गंदा, चुभने वाला उसका सुर था. तो उन्होंने उसको मना कर दिया. और फिर उन्हीं के जो राज्यसभा था उसमें एक नाई था, बारबर जिसे नाई कहा जाता है, वो था. उसने क्या किया कि ऐसे ही एक हॉलो लाइन लिया, उसमें 7 छेद कर दिए उसमें, और उनको बंद करके, क्लोज करके, किसी को ओपन करके ऐसे उसने बजाना स्टार्ट किया. और बहुत ही अच्छा आवाज़ था. और जब उसने किंग के सामने बजाया, एम्परर के सामने बजाया, तो उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिला. और एज़ कि वो शाह के दरबार में बजाया गया था और वो एक नाई ने स्टार्ट की थी, इसलिए उसका नाम दे दिया गया शहनाई. द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, मतलब बहुत ही क्या कहते हैं उसको, ऑस्पिशियस मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा फॉर्च्यून के लिए, जो कहता है ना, गुड फॉर्च्यून जो लाता है, उसके लिए किया गया था. एंड फॉर दिस रीजन इट स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स एंड इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ नॉर्थ इंडियन वेडिंग. In the past, the Sehnai was a part of Naubat or traditional ensemble of nine instruments found at royal courts. Still recently, it was used only in temples and wedding. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to Ustad Bismillah Khan. तो सहनाई को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ऑस्पिशियस, अच्छे फॉर्च्यून का प्रतीक माना, शुभ माना जाता है, जो कहते हैं ना शुभ, उसको वो माना जाता है. और इसलिए उसको बहुत से अच्छे कामों में, कोई भी अच्छा हो, मतलब कुछ भी अगर शुभ कार्य हो रहा हो तो उसमें बजाते, स्पेशली शादी ब्याह में, मंदिरों में. और इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्लासिकल स्टेज पे लाए थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने. एज अ 5-year-old, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. He would regularly go to nearby Biharji temple to sing a Bhojpuri chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. This happened 8 years ago and the little boy has travelled far, earned the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. सो एक 5 साल के बिस्मिल्लाह खान जो थे, वो गिल्ली डंडा खेलते थे पोखरे के पास, डुमराव, एक छोटे से डुमराव के गांव में, बिहार में. और वो हर रोज़ शाम को जाते थे और वहाँ पे चैता गाया. चैता क्या होता है ना, जो फागुन के बाद जो महीना आता है, रामनवमी के दौरान, से चैता गाया. तो वो चैता गाते थे और उनको प्राइज़ में, जो राजा थे, उनको 1.25 kg का लड्डू देते थे एज अ प्राइज़. और वो बहुत खुशी खुशी उस लड्डू को लेकर आया. तो सोचो, वही वो छोटा 5 साल का बच्चा लड्डू एज अ प्राइज़ पाने के बाद 80 साल पहले, और अब वो जाके भारत रत्न तक पा चुके हैं. तो उन्होंने कितनी लंबी जर्नी स्टार्ट की है. Born on 21 March 1916, Bismillah Khan belonged to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather was Rasool Baksh Khan, was the Sehnai Nawaz of Bhojpur King's court. His father, Paigambar Baksh, and other paternal and sister were also great Sehnai players. तो 21 मार्च 1916 में उनका जन्म हुआ था. और वो बहुत ही ज़्यादा म्यूजिशियन फैमिली, रॉयल म्यूजिशियन, जो कि राज दरबारों में जाके गाते थे, उनके ख़ानदान से थे. उनके दादाजी रसूल बख्श खान, वो सहनाई बजाते थे भोजपुर के राजा के दरबार में. उनके पापा पैगंबर बख्श भी वही करते थे. और उनके बाकी पैटर्नल, मतलब पिता के तरफ के जितने अनसिस्टर थे, जैसे चाचा हो गए, छोटे दादा हो गए, वो सब लोग यही काम करते. ताया हो गए, वो सब सहनाई ही प्लेयर्स थे. मूविंग अहेड, द यंग बॉय to music early in life. At the age of 3, when his mother took him to the maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncle practicing the Sehnai. Soon Bismillah started accompanying Uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the Sehnai. Ali Baksh would play the Sehnai and Bismillah would sit captivated for hours on end. Slowly he started getting lesson in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the bank of Ganga became the young apprentice
favorite haunts where he could practice in solitude. The flowing of waters of Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Sehnai. तो वो 3 साल की उम्र में उनकी मम्मी ने उनको अपने मामा के घर मैटरनल अंकल के पास छोड़ा, जिनका नाम था अली बख्श. वहाँ पे वो बनारस गए. बनारस में अली बख्श जी को उनका काम था कि वो एम्प्लॉय थे, वो मतलब उनका प्रोफेशन था कि विष्णु टेम्पल में उनको जाकर सहनाई बजाना था. वो उनके साथ रोज़ जाते थे और वहाँ बैठ के वो सहनाई सुनते थे. और कुछ ही समय में वो उसको सीखना भी स्टार्ट कर, उसका अध्ययन भी करना स्टार्ट कर लिया. और वही अध्ययन के लिए उन्होंने मंगला मैया, टेम्पल ऑफ बालाजी, इन सब के पास जाके वो भी बजाने लगे. गंगा नदी के किनारे बैठ के बजाने लगे. उस खाली एकांत जगह में वो बहुत शांति पाते थे, वहाँ बजाते थे. और गंगा मैया की जो लहरें थी ना, जो पानी की लहरें थी, वो उनको प्रेरित करती थी कि वो नए नए रागा बना पाए. और सहनाई में राग वॉज द समथिंग डिफरेंट दैट ही वॉज डूइंग. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. At the end of recital, Ustad Faiz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." With the opening of All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard Sehnai player on radio. So 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान अपने मामा जी को मतलब साथ देते हुए इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए. और वहाँ पे जो उस्ताद फैज़ खान थे, उस टाइम के बहुत बड़े उस्ताद थे, उन्होंने उनका पीठ थपथपाई और कहा कि तुम मेहनत करो, तुम ज़रूर कुछ ना कुछ करोगे. और 1938 में जैसे ही ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में खुला, वो रेडियो पे सहनाई बजाने का काम मतलब उनको मिल गया. एंड उनको बहुत से लोग उनके व्यूवर्स हो गए, सुनने वाले आ गए. जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 15 अगस्त 1947 में, बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे इंडियन थे जिन्होंने नेशन को सहनाई बजा के ग्रीट किया था. उन्होंने राग काफ़ी बजाया, जो रेड फोर्ट पे सारे ऑडियंस, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री वो भी थे. और उसके बाद ही उस सहनाई प्ले होने के बाद ही वो ट्विस्ट विद डेस्टिनी जो उनकी पहली स्पीच थी वो उन्होंने दिया. So this is from the first part, and second part we will go it afterwards. Thank you class.